Good morning to all of my students. In previous class, I have discussed some important properties of D block elements. Okay. In today's lecture, I will discuss some another physical properties of D block elements. Okay. Let's start. The physical properties of D block element. The first point is what? First point is that D block generally contains metals. Means D block में जितना भी elements है generally वो क्या होता है metals होता है. And you already know the properties of metal. Okay, metals are malleable in nature, metals are sonorous, metals are ductile, and it is also lustrous. Okay, why it is lustrous? Because in case of D block elements, what happen? All the electrons are loosely bounded, okay, loosely held with a nucleus, so that less amount of energy is required to remove the outermost electron, okay, and it can easily form so many metallic bonds, okay, and in that case transition take place so that some compound of D block elements is colored, okay. This is the reason. Next is what? Ionization energy. Okay. In this case, what happened? Ionization energy changes from left to right and from top to bottom. Okay, increases or decreases. Today we will discuss. Okay. Before starting these changes of ionization energy from left to right or top to bottom, first of all, you should know what is ionization energy. Okay, now the answer is what? Ionization energy is what amount of energy is required to remove the outermost electrons. It is called what? Ionization energy. Okay, means as for example, we take an example. This is what? Nucleus, and it's surrounded what? Electrons. Okay, so many shells is there. Okay, suppose there are 1 2 3 3 shell present. Okay, so this is K shell, and this is what? L shell, and this is what? M shell. Okay, so ionization energy means removal of electrons from outermost shell. ठीक है, outermost shell से one electron को remove करने के लिए तुमको कितना amount of energy provide करना होगा. ठीक है, this is ionization energy. Okay, तो मैंने अभी तुमको एक question किया है like this is one atom and it is small size. Okay, it has small size. Okay, and another element is that it has big size. Okay, now my question is that in which case ionization energy will be higher. Okay, one is small size element, another one is big size element. Okay, among these, which one has highest ionization energy? Okay, the answer will be this. Okay, small size elements has higher ionization energy. Okay, what will be the answer? Okay, in small size elements, what happen? The attraction between the electrons, outermost shell electrons and nucleus will be high. Okay, attraction is high means electrons are tightly bounded with nucleus. Okay, electron tightly bounded है means वहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो तुमको आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा. Okay, that means in small elements what happen, ionization energy will be high. Okay, but in case of big elements what happen, the distance between the nucleus and outermost shell electron is what? Less, so that attraction between the nucleus and the outermost electron will be less. Attraction वहाँ पे उतना ज्यादा है नहीं, मतलब क्या है, attraction ज्यादा नहीं है मतलब वो weakly bounded है.
ठीक है। एंड वीकली बाउंडेड है तो वह उसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए तुमको उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ओके, सो दैट इन बिग साइज एलिमेंट इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट, लेस as compared to small size element. Okay, now अभी आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंजेस डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हाट हैपन, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में जाने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसका इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, next important point is that zinc, cadmium and mercury have very high ionization energy due to their fully filled electronic configuration. Okay, in case of zinc, cadmium and mercury, what happens? In case of zinc, as for example, the electronic configuration is what? Zinc, argon, 3d10, 4s2. Okay, means in case of zinc, d orbitals are fully filled, s orbitals are fully filled. Okay, orbitals are fully filled, so that in that case what happen, it is fully filled, so in that case what happen, no need to remove electrons from outermost shell, and so that what happen, ionization energy will be high because it is in stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है, उसका कोई टेंडेंसी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का। देर से अगर तुमको इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज करना भी है, ठीक है, लेकिन तब क्या करना होगा, तुमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, देन यू कैन रिमूव। ओके, so in case of zinc, cadmium, mercury have high ionization energy। IE1 का मतलब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए तुमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होगा क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। ठीक है, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो ये उसका टेंडेंसी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर करना है तो क्या होगा, तुमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, दैट्स व्हाई इट हैज हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, and this is the graphical representation. In y-axis this is first ionization energy, and in x-axis these are transition metal. Okay, and this graph for 3D series. Okay, in and this is for 4D series, and this is for 5D series. Okay, this is the changes of ionization energy. Is it clear to all of you? Okay, next important point is that सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, IE2 मतलब क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्रोमियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू मैंगनीज, कॉपर का ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। ठीक है, अभी उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा, ऐसे वैसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो IE2 का मतलब क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अभी सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए तुमको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, दिस इज व्हाट, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। ओके, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हुआ था, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है 4s, वहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया था। ओके, आफ्टर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी व्हाट हैपेंड, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो 3d के अंदर क्रोमियम का कितना इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एंड मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन तो पहले लिखना होगा, आर्गन के बाद क्या है, मैंगनीज का 3d5 4s2।
2। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, s ऑर्बिटल से, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d5 4s1। okay, 3d5 4s1, this is the first ionization energy। okay, तो इन केस ऑफ क्रोमियम उसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, एंड मैंगनीज का क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, तो अभी तुम वहां से इजीली कंपेयर कर सकते हो, जो क्रोमियम है उसका जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, मींस उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो गया, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके वहां से रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, तुमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इन केस ऑफ क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 एंड ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है तो उसका ये टेंडेंसी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मैंगनीज व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन it is 3d5 4s1। okay, means it contains 1 electrons in 4s orbital, so it can easily remove। okay, so no need to more amount of energy to remove this electron। okay, so that we can say that second ionization energy means second electron को remove करने के लिए कितने amount of energy provide करना होगा, this is second ionization energy, and second ionization energy of manganese is less as compared to what, chromium, means chromium का क्या है, second ionization energy और क्या है, ज्यादा है। ओके, वैसे सेम ही एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कॉपर एंड जिंक का भी होगा। ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1। ठीक है, एंड जिंक का क्या है, 3d10 4s2। ओके, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हुआ था, लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन से एस से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसके अंदर क्या है, 3d। ठीक है, 3d में उस कितना इलेक्ट्रॉन से, 10 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इन केस ऑफ कॉपर। ओके, एंड इन केस ऑफ जिंक व्हाट हैपेंड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2। ओके, एंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मींस उसका आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इन केस ऑफ जिंक ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका 4s सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से, तो उसका टेंडेंसी होगा दिस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का। ठीक है, एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, 4s1 एंड 3d10 था। ठीक है, क्योंकि 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो गया था। ठीक है, तो अभी उसके पास क्या है, 3d10 इलेक्ट्रॉन से, तो उसका ये टेंडेंसी नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल है, लूज करने का कोई टेंडेंसी नहीं होगा। दैट्स व्हाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d। okay, this is the reason। okay, next important point is what, due to stable electronic configuration after removing 1 electrons। ठीक है, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ये वर्ड से तुमको पता चल रहा है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन मींस एटॉम में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो वेरियस मॉलिक्यूल से उसको ब्रेक करके क्या करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में, एटॉम में, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में डिवाइड करने के लिए तुमको कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन ए कंपाउंड्स बॉन्ड आर ब्रोकन and the component atoms are reduced to individual atoms। okay, जो enthalpy change है when a compounds bonds
आर ब्रोकन, जब क्या होगा, कंपाउंड का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, तो कंपोनेंट एटम्स आर रिड्यूस टू इंडिविजुअल एटम, जो कंपोनेंट एटम्स है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा इंडिविजुअल एटम में, एंड दिस इज द हीट ऑफ एटमाइजेशन। ओके, another important point is that heat of atomization is similar to melting point, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होता है, बहुत सारा बिग बिग मॉलिक्यूल और क्या होता है, ब्रोकन होके ब्रेक डाउन करके क्या होता है, स्मॉल पार्ट इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट होता है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन में भी ऐसे तो हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, बिग जो कंपाउंड से मॉलिक्यूल से उसका ब्रेक होके ब्रोकन एंड इट फॉर्म ए it component atom are reduced to individual atom or individual atom में convert हुआ है, तो it is similar to a melting point. Okay, so in case of d block elements there are so many elements, among these elements chromium from 3D series, ठीक है, 3D series से जो chromium है उसका heat of atomization और क्या है, highest है, और क्यों है, क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d5 4s1, ठीक है, मीन्स इन केस ऑफ क्रोमियम 3D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन से 5 एंड इट इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इन s और सबशेल इट contains 1 electron, means total number of unpaired electron is what, in case of chromium it is 6. Okay, total 6 unpaired electrons is present. Okay, means maximum number of unpaired electron is present, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मीन्स वो क्या करेगा, दूसरा जो एलिमेंट है उसके पास हाफ फील्ड है तो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड दिस बॉन्ड इट विल बी स्टेबल बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ओके, तो उसको ब्रेक करने के लिए तुमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। ओके, this is the reason why chromium has the highest heat of atomization. Okay, is it clear to all of you? नीचे रीजन भी दिया हुआ है, फॉर 3D metals it contains maximum unpaired electrons. Okay, and this is the graphical representation of enthalpy of atomization with respect to what, with respect to atomic number. Okay, from this graph we can say that in 3D series उसका क्या है, हीट ऑफ एटमाइजेशन कम है as compared to 4D as compared to 5D. Okay, देख सकते हो, this is for 3D series, this is for 4D series and this is for 5D series. 5D series का heat of atomization सबसे ज्यादा है, then 4D, then 3D. Okay, in next class I will discuss another physical properties of d block element. This is what, melting point. Okay, तो आज के लिए इतना तक ही, अगर किसी का कोई डाउट है तो फील फ्री टू कांटेक्ट। ओके, थैंक यू।